Good morning. Today we are going to discuss the accounting principles. So what basically are the principles? जब भी किसी organization में किसी business में accounting statements prepare की जाती हैं for the outside parties कि outside parties उस business की profitability, solvency position ये सब check कर सकें, उन accounting statements को कुछ certain rules, regulations, guidelines के basis पर prepare किया जाता है. Those rules are known as the generally accepted accounting principles. These accounting principles help in maintaining the uniformity and also helps in easy understanding. जो भी outside parties उन statements को review कर रही हैं, उनके लिए understandable होता है, statements को समझना easy रहता है. And these accounting principles are bound to change. आप इनके basis पर अपने accounting statements को change भी कर सकते हैं easily. And the principles must be relevant as per the business organization. उसके basis पर ही principles को बनाया जाता है and must be feasible for the organization. जो भी organization उनको use कर रही है उनके लिए feasible हो उनको use करना. These are the certain accounting concepts or you can say the postulates and these are the accounting conventions. तो आज हम accounting concepts and conventions study करते हैं. We are going to start with the accounting concepts. The first one is business entity concept. कोई भी business organization होती है, एक सबसे पहले जो concept हम consider करते हैं that is कि जो भी business के owners हैं और जो business organization है वो दोनों को separate and distinct identities consider किया जाता है. business organization की separate books maintain की जाती हैं whereas जो owner है उसकी भी separate books maintain की जाती हैं. Next is the money measurement concept. इसके according जितने भी accounting transactions रहती हैं, जितने भी events रहते हैं business में, वो सब money की form में जो express किए जाते हैं उनको accounts में record किया जाता है. जो भी transactions हैं जिनका effect monetary terms में नहीं होता, उनको आप अपने accounting transactions में record नहीं करते हैं. Third one is the going concern concept. According to this concept, it is assumed कि जो भी business organization setup की जा रही है, कोई भी business setup किया जा रहा है, वो इस assumption से setup किया जाता है कि ये continuously long period तक exist करने वाला है. ठीक है, अगर आप for example आप machinery purchase करते हैं तो आप यही consider करके चलते हैं कि for the next 10 years जो machinery की cost है आप उसको नेक्स्ट 10 years तक स्प्रेड करेंगे. जब भी आप अपने एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर कंसिडर करके चलते हैं अपने बिजनेस की एग्जिस्टेंस को. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उनके बिजनेस की ट्रू रिजल्ट्स डिस्क्लोज करती है वो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को आप डिस्क्लोज करते हैं. तो वो कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में उन इंटरेस्टेड पार्टीज को आप रिजल्ट्स डिस्क्लोज करते हैं अपने बिजनेस के. उसके लिए एक 12 months पीरियड अडॉप्ट किया जाता है एज पर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. वो 12 months पीरियड क्या है? फाइनेंशियल ईयर 1st April to 31st March ये कंसिडर किया जाता है हमारे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. Next you have cost concept और historical cost concepts. इस concept के according जो भी asset आप रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो किस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस पर आपने उसको एक्वायर किया है, जिस पर आपने उसे परचेज किया है. Here is an example for you. If a business purchases a building for rupees 5 lakh, building purchase की थी 5 lakh की, it would be recorded in the books. And after 2 years, the market value of the building is rupees 10 lakh. अगर 2 years के बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख हो जाती है मार्केट वैल्यू तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप किस अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं? जिस अमाउंट पर आपने एसेट को एक्वायर किया है, परचेज किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है उसके अकॉर्डिंग एक अकाउंट आपका डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाता है. इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. यहाँ पर आपके पास एसेट्स लिए जाते हैं अगर तो एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल
और यू कैन से कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, एक आपका एसेट साइड पर इफेक्ट रहेगा और एक आपका लायबिलिटी साइड पर इफेक्ट रहेगा। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट होता है एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, दैट इज नोन एज द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यू हैव रेवेन्यू रिकग्निशन रियल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जब भी आप सेल करते हैं अपने गुड्स को, आप रेवेन्यू अर्न करते हैं। एंड रिकग्निशन का मीनिंग क्या है? डिटरमिन्स द पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। किस पीरियड में आपने, किस टाइम पर उस रेवेन्यू को रियलाइज किया, मतलब आपने कंसिडर किया उसको। तो जब भी आपके गुड्स का टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है गुड का, आप उस टाइम पर उस रेवेन्यू को रियलाइज करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपके पास एक ऑर्डर आता है, फर्म सप्लाई करती है गुड्स 20th जनवरी को। ठीक है, और आपको कैश कब मिलता है? 1 अप्रैल को। रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड ऑन 20th जनवरी। ठीक है, क्योंकि गुड्स कब सप्लाई हुए थे? 20th जनवरी को गुड्स सप्लाई हुए थे, तो इट मीन्स उस दिन 20th जनवरी को गुड्स जब सप्लाई हुए तब ओनरशिप शिफ्ट हो गई थी, ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, तो जिस डेट पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है हम उस डेट पर अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जितने भी कॉस्ट आपके एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी कॉस्ट आपके इनकर किए जाते हैं टू अर्न सम रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, दैट शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट उस एक्सपेंस को कंसिडर किया जाता है, उस एक्सपेंस को चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस में जो इंश्योरेंस प्रीमियम था नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है, तो जो भी पार्ट आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है आप उसको एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो जब भी उसका आपको रेवेन्यू रिसीव होना होगा तभी आप उस पर्टिकुलर ईयर में ही आप उस कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट शो इट। तो आपने कब चार्ज किया उसको, जो इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का था उसको किस ईयर में दिखाया? नेक्स्ट ईयर में ही एज एन एक्सपेंस कंसिडर किया और करंट ईयर में कंसिडर नहीं किया। राइट, दिस इज नोन एज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट you have the accrual concept. Now revenue is recorded when sales is made, immaterial of whether the cash is received or not. Accrual concept के अकॉर्डिंग अगर आपने सेल किया है और जो आपका कस्टमर है उसने आपको कहा है कि आपको कैश मे बी आफ्टर 1 वीक वो पे करेंगे, तो आपको कैश मिला या नहीं मिला, आपने उस सेल को रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली इन इज द केस विद द एक्सपेंसेस। अगर आपने कैश पे नहीं भी किया और कोई चीज परचेज कर ली है तब भी आप उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस इज नोन एज accrual concept. Next is the objectivity concept. As per this, the transactions which are recorded in the accounts, the management and the accountants जो भी prepare कर रहे हैं आपके accounts, the transactions which they are recording should be free from personal bias. ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स हैं वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होने चाहिए एज पर दी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब भी मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर रही होती है, तो वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स को अटैच किया जाता है सो दैट वी गेट टू नो कि जो भी एक्सपेंस इनकर किया गया है या जो भी रेवेन्यू अर्न किया गया है उसके साथ आपके वेरीफाइड वाउचर्स हैं और वो ट्रांजेक्शन्स उन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आपके पास सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स रहती हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको फुली डिस्क्लोज करनी चाहिए।
ठीक है। अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है बिजनेस की, या आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड चेंज किया है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बाय द वे ऑफ फुटनोट्स आप उन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, और अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में जितनी भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मॉनेटरी टर्म्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, वो आप सारी फुली डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं या मेथड्स यूज कर रहे हैं, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। वो कंसिस्टेंटली आपको यूज करने हैं फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी मशीन को डेप्रिशिएट कर रहे हैं और एक ईयर में आप ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, विल इट बी इजी फॉर यू टू कंपेयर? आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने डेटा को, अपने ट्रांजेक्शन्स को। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यही कहता है कि ईयर टू ईयर आप अपने जो भी मेथड्स या प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट रखें, कंसिस्टेंट रखें, ताकि आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर आप इजीली उनको कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं those should be recorded in the books of accounts, but all the anticipated or unrealized gains should be ignored. आप इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, जो भी आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में होने वाले लॉसेस हो सकते हैं कि इनकर हो, आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कोई अनरियलाइज्ड गेन्स, एंटिसिपेटेड गेन्स हो सकते हैं, आप उन फेवरेबल इफेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कैसे चल रहे हैं, आप पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ यूज कर रहे हैं, जिसमें आप लॉसेस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर नहीं भी होते हैं तो यू आर ऑन अ सेफर साइड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स का आपको डाउट रहता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके डेटर्स आपको पे नहीं करें, तो आप उसका एक सेपरेट प्रोविजन बनाकर रखते हैं, तो दैट इज नोन एज एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। And the next one is convention of materiality. ये आपके convention of full disclosure का exception रहता है। full disclosure क्या कहता है कि जितनी भी significant information है वो disclose करनी है, but convention of materiality एक exception है। it says ये बिल्कुल opposite है full disclosure के, because इसके according, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जितनी भी इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जिस आइटम का इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, वो इररेलेवेंट है किसी भी यूजर के लिए, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कंसिडर कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एज एन एक्सेप्शन टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो नेक्स्ट वी हैव द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट जब कोई अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, सो दैट यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस यूज की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पर। ठीक है, तो वो आपके रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ऐसे नॉर्म्स रहते हैं जिसके वजह से आप अपने एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू को फॉलो करते हुए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, और इजीली वो कंपेरेबल होती हैं, बिकॉज वो सेम स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं ईयर टू ईयर, तो आपके स्टेटमेंट्स आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। What are the advantages of accounting standards? इससे आपके स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, कंसिस्टेंसी रहती है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहती ग्रुप्स में, एंड ऑडिटर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है। यहाँ पर है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एंड देन यू हैव डेप्रिसिएशन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। So these are some of the important accounting standards. आपके total accounting standards 32 accounting standards रहते हैं। Next you have international financial reporting standards. International financial reporting standards आपके जो internationally use किए जाते हैं and internationally acceptable हैं। ये कुछ assumptions हैं आपके international financial reporting standards की, and then you have the difference between IFRS and Indian GAAPs. Indian GAAP के according आपके जो भी गैप है वो रूल्स के बेस पर बना है, और जो आपके IFRS है वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर बने हैं।